tell you that our keynote speaker, Dr. Professor Dr. G. A. Ghansham sir, is now here with us. Hello, sir. Good afternoon, sir. Hello. Very good afternoon. Sir, allow me to take a couple of minutes to introduce sir to you all, even though it's the second time he's coming right now in our event. First is Professor Dr. G. Ghansham sir is a professor of English and officer on special duty at the Directorate of Higher Education, Chhattisgarh, Raipur. He has 96 research papers published in the international and national journals and has published 14 books to his credit. He has guided 7 PhDs and 3 MPhil scholars. He was awarded associationship by Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. He is the Fellow of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. He has delivered 96 talks as resource person, speakers, keynote speaker, and other renowned positions. He has conducted 75 workshops on various aspects of language and soft skills. He has 26 years of teaching experience in HEIS and 5 years of higher secondary schools. Now he is the in-charge officer at State Level Quality Assurance Cell of Chhattisgarh State. And as you know, it can go on and on because he has done a lot of things in his life till now, and I'm sure he's still achieving a lot of bigger things than this. So without taking any much time, I would request sir to take over from here and bless us with your knowledge on the topic Elevate Life with a Personality Without Duality. Over to you, sir. Thank you very much, Sarthak. Indeed, it's a pleasure talking to all the people. Hope my voice is audible right now. Yes, sir. It's pretty much audible. Yeah. Thank you very much. And indeed, it's a pleasure and honor both for me to be here on the stage and talking to you about a very important aspect of life. That's what we call personality development. And as far as personality is concerned, is my screen visible? Sarthak, is my screen visible? Yes, sir. It's visible. It's visible. Hello? Yes, sir. It's visible. Okay. Thank you. So as far as personality is concerned, what comes to our mind? All the time, the mind is moving. And when the mind is moving, in the same way, the personality has to move. And when we talk of personality, what matters most in our life? Because we are getting the life only for once. हमें अपना जीवन एक बार के लिए मिलता है और उस मिले हुए जीवन में हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये निर्भर करता है हमारे अपने व्यक्तित्व के विकास से। और हमारा जो व्यक्तित्व है वही हमारा अस्तित्व भी है। यदि हमने अपने व्यक्तित्व को ऊर्जावान बनाया, सकारात्मक बनाया, लोगों को प्रेरणा देने वाला बनाया, वही हमारा अस्तित्व है। So a person's personality is the persona of a person, and it makes the person the most dynamic, efficient, committed kind of a person. When we talk of personality, what comes to your mind? See, this comes. How others see you is not important. What is important is how you see yourself. That means everything. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उतना महत्व नहीं रखता, बल्कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। यदि मैं रोज उठकर आईने पे अपनी तस्वीर ही रोज देख रहा होता हूं तो मेरे व्यक्तित्व में कोई विकास नहीं दिख रहा होता है। यदि मैं रोज सुबह उठकर उस व्यक्ति को देख रहा हूं आईने में जो मैं बनना चाहता हूं, जिसके मैंने सपने सजोए हैं, I want to become the person what I want to see. If that face is visible in the mirror, then your personality is developing. The person's personality develops right from the moment he takes birth till the end of his life. हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका व्यक्तित्व का विकास उसके पैदा होने से लेकर उसके अंतिम घड़ी तक लगातार होते रहता है। जब हम व्यक्तित्व की विकास की बात करते हैं तो हम क्या हैं? We are what we think. हम वो हैं जो हम सोचते हैं। If I think I am unable, I am unable. If I think I am able, I am able. मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, और यदि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो वाकई में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं। तो मेरी सोच जो है वो मेरे व्यक्तित्व को विकसित बनाती है।
और ऐसा व्यक्तित्व मेरी सोच मुझे बनाती है, जैसा जैसा मैं सोचते जाता हूं मेरे शरीर के अंदर की क्रियाएं भी उसी प्रकार होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मैं नकारात्मक सोच रखता हूं तो मेरे अंदर भी विकार उत्पन्न होते हैं और वो विकार एक वृहद आकार ले लेते हैं। यदि मैं सकारात्मक सोचता हूं तो मेरे अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा संचरित होती है और वही सकारात्मक ऊर्जा अंदर से संचरित होकर बाहर भी प्रवाहित होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने मन में आदर और सम्मान रखें। घृणा यदि आप रखते हैं तो वो घृणा आपको ही, आपके अंदर ही कचोटती रहेगी। दैट्स व्हाई डेवलपिंग ओवरऑल विनिंग अप्रोच इन लाइफ, हमें अपने जीवन में एक ओवरऑल विनिंग अप्रोच बनाने की जरूरत है। कैसे उस अप्रोच को बनाएं, कैसे अपने आप को हम एक कुशल वक्ता बनाएं, उच्च व्यक्तित्व बनाएं, हमारी भाषा शैली कैसी हो और कुशल नेतृत्व शक्ति हम में कैसे आए, आत्मविश्वास हम कहां से लाएं, हमारा संप्रेषण जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं उसको हम कैसे विकसित करें और इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे विकसित करें। आज की इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम इन्हीं बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से देखते हैं कि आखिर होलिस्टिक पर्सनालिटी होती क्या है। क्वालिटी इज योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी क्या है? आपकी पर्सनालिटी आपकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपकी, और यही आपकी क्वालिटी जो है वही आपकी पर्सनालिटी है। और कभी भी पर्सनालिटी में डुअलिटी नहीं होना चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए कि दिखना कुछ और होना कुछ और। इसलिए कभी भी जुबान एक होनी चाहिए, सांप के जैसी कभी भी दो जुबान नहीं होनी चाहिए। जो आप कहते हैं उसी पर आपको अमल भी करना चाहिए और जो आप अमल करते हैं वही आपको कहना भी चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी कॉल द पर्सनालिटी शुडंट हैव एनी डुअलिटी। उसमें कभी दो राह ना हो, उसमें केवल एक ही राह हो और उसी राह पर हम चलते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल द क्वालिटी ऑफ लाइफ and the quality of the personality. So you can see this, Saurav Ganguly, when he won the match, he just started rounding his t-shirt उसने खोला और जोर से टी-शर्ट को घुमाया। एक उत्साह है, एक उमंग है, एक तेज है और एक खुशी है। उस खुशी में टी-शर्ट बाहर निकल के हवा में लहरा रहा है। ये हमारे सौरव गांगुली कप्तान। दूसरे देखिए कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद युवराज सिंह का आप एक्सप्रेशन देखिए और महेंद्र सिंह धोनी का एक्सप्रेशन देखिए। यहां पर आपको पर्सनालिटी दिखाई देती है। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, तीन तरीके की पर्सनालिटी होती है, एक एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट और एक एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में आपको सौरव गांगुली दिखाई दे रहे हैं और एम्बीवर्ट पर्सनालिटी में जो है आपको महेंद्र सिंह धोनी दिखाई दे रहे हैं। और इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, उनमें अंदर क्या चल रहा होता है ये वो बता ही नहीं पाते हैं। तो हमारे पास जब हम सेक्शन करते हैं पर्सनालिटी का, तो दिस पर्सनालिटी कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 वेरियस कैटेगरीज, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। सी धोनी, एंड दैट्स व्हाई धोनी इज रिगार्डेड एज कैप्टन कूल। हार में भी चेहरा वैसी शांतचित, और यदि जीत भी गए तो उसमें भी आनंद उत्साह जो है वो भी संयमित उत्साह और संयमित आनंद, जो कि किसी भी प्रकार से एक्सट्रोवर्ट को नहीं दिखा रहा है। सो देयर लाइज द रियल एसेंस एंड द स्किल ऑफ पर्सनालिटी। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, जिस व्यक्ति की भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है उसको हमें गाइड मानना चाहिए। और गाइड की परिभाषा क्या है? जी से वो व्यक्ति जेनरस हो, यू से अंडरस्टैंडिंग हो, लोगों को समझ सकता हो, उसके मन में एम्पैथी हो, परानुभूति हो। सहानुभूति नहीं चाहिए लोगों को दुनिया में, बल्कि परानुभूति चाहिए और समानुभूति चाहिए। हम सब समान हैं, ऐसा यदि हम सोचे, ऑल आर इक्वल। तीसरा आई जो है वो इनोवेटिव हो, सकारात्मक और नई नई चीजें सोचे, डेडिकेटेड हो, जो काम कर रहा हो उसके प्रति लगातार समर्पित हो, और ई एंटरप्राइजिंग हो, ऐसा एंटरप्राइजिंग व्यक्ति जो दूसरों को भी ऊर्जा अपने से उनमें संचरित कर सके। हम सभी, we all are human beings, because when we take birth we are human beings, and there is a long gap between human beings and being human. So never ever try to become perfect in your life,
because nobody is perfect in this world. अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर, इफ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, then how many of them are perfect in this world? I said, there is no one perfect in this world. Then he said, sir, then why to practice? Oh, I said, no. Practice makes a man efficient. His efficiency increases. So we need to do practice to reach towards the perfection, but nobody is perfect. So don't try to be perfect. Just try to be the excellent example of being human. यदि आप being human बनते हैं, मतलब आपके अंदर में परानुभूति से बढ़कर एक और अनुभूति आती है जिसे हम समानुभूति कहते हैं. सब समान है. इस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस विश्व में हर कोई समान है, और वही समानता जो है वो हमें बीइंग ह्यूमन बनाती है. सो द वंडरफुल कैरेक्टर ऑफ द पर्सनालिटी इज टर्निंग फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन. और हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर एक हार्डवेयर होता है. हम जो बाहर का ढांचा जो दिखाई देता है, दैट्स नोन एज द हार्डवेयर. एंड जो अंदर का हमारा दिल है, जो मन है, दैट्स नोन एज सॉफ्टवेयर. एंड दिस हेडवेयर रिलेट्स विथ, इट इज रिलेटेड विथ हेड. व्हाट यू थिंक, दैट्स व्हाट हेडवेयर कीप्स योर हेड हैप्पी. बट एज फार एज सॉफ्टवेयर इज कंसर्न, software always keeps your heart happy. So inspiring youth, developing community of champions, that could be done only with the help of the heart, not with the help of the head. आपने अपने जीवन में कितने दोस्त बनाए हैं? आपके दोस्त कभी भी आपके दिमाग से नहीं बनते, हमेशा आपके दिल से बनते हैं. और दोस्त हमेशा दिल से जुड़ते हैं. जिस दिन आप दिमाग से दोस्त बनाने जाएंगे, आपको शायद दुनिया में कोई दोस्त ही ना मिले. और जिस दिन आप दिल से दोस्त बनाने जाएंगे, आपको न जाने कितने दोस्त मिलते हैं. और दोस्त हमेशा दिल के बड़े करीब होते हैं, वो दिमाग से बहुत दूर होते हैं. सो दैट्स व्हाई हार्डवेयर इज रिलेटेड विद द हेडवेयर, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग इज द हार्डवेयर व्हिच इज रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर. और वही आजकल की दुनिया है. हम आजकल की दुनिया में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जी रहे हैं. हमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने हार्डवेयर को परिवर्तित कर सकते हैं. And these are the famous people. And when we talk of the personality, these are the famous people. Are these people the personalities? Then we call development. Do you think this is the development? जब हम 4 पैर से धीरे धीरे करते हुए 2 पैर में चले, क्या ये हमारा फिजिकल ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट है? कदापि नहीं. पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? Personality development is integrated organization of physical, emotional, intellectual, social, psychological and spiritual characteristics of an individual. प्रत्येक व्यक्ति कैसा उसका फिजिक है, कैसा उसके अंदर का इमोशनल कंटेंट है, उसके अंदर की सोचने की इंटेलेक्चुअल शक्ति कैसी है, उसका सामाजिक गुणक कैसा है, सोशल कोशेंट कैसा है, उसके अंदर की साइकोलॉजी कैसी है, उसके अंदर के स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट कैसे हैं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है. दुनिया में हम हर एक व्यक्ति को इंटेलिजेंट कोशेंट से नापते हैं, जबकि पर्सनालिटी में इंटेलिजेंट कोशेंट कम होता है, इमोशनल और स्पिरिचुअल कोशेंट ज्यादा होता है. जिस किसी व्यक्ति की भी पर्सनालिटी आपको लगती है बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, उस व्यक्ति में इमोशनल कोशेंट और सोशल कोशेंट सबसे ज्यादा होता है, उसमें इंटेलिजेंट कोशेंट कम होता है. लेकिन ये जो चीजें हैं ये उसको काफी आगे की ओर ले जाती हैं. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज ऑलवेज ऑनगोइंग प्रोसेस. ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. तो डेवलप अ विनिंग पर्सनालिटी. जब हम विनिंग पर्सनालिटी कहते हैं तो विनिंग पर्सनालिटी के लिए हमको अपनी पर्सनालिटी को 24 कैरेट गोल्ड में कन्वर्ट करना होगा. सबसे अच्छा सोना कौन सा होता है? जो 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल 24 कैरेट का. तो ये जैसे कार है हमारी 24 कैरेट की, वैसी ही हमारी पर्सनालिटी भी 24 कैरेट पर्सनालिटी इट हैज टू बी. हाउ टू मेक द पर्सनालिटी द 24 कैरेट पर्सनालिटी? तो सबसे पहला है, इट्स बेटर टू बी हेटेड फॉर व्हाट यू आर देन टू बी लव्ड फॉर व्हाट यू आर नॉट. ये अच्छा होता है कि लोग आपकी घृणा करें जिसके लिए आप हैं, न कि आपको उस चीज के लिए प्यार करें जो आप हैं ही नहीं. तो हमेशा मेरा आपसे निवेदन होगा, बी योरसेल्फ. आप जो हैं वो बने रहिए. यू आर
गॉर्जियस द वे यू आर, जैसे आप हैं आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है। ईश्वर ने आपको इस दुनिया में लाने के बाद उस सांचे को ही तोड़ दिया है। जो आप हैं वो बने रहिए, दूसरों के लिए अपने में परिवर्तन मत करिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। तो क्यों रहना, क्यों समय को बिता रहे हैं? आप जो हैं बहुत अच्छे हैं और अच्छा बनने का प्रयास करिए। दिस इज द फर्स्ट कैरेट। वी विल कम टू ऑल द 24 कैरेट्स। सेकेंड कैरेट इज द चेंज, अडॉप्ट टू द चेंज। यदि परिवर्तन आ रहा है तो परिवर्तन को अपने सामने से गुजरने मत दीजिए। परिवर्तन को कहिए कि परिवर्तन तू मेरे अंदर से होकर निकल। द चेंज मस्ट गो फ्रॉम यू एंड यू मस्ट बिकम द मीडियम ऑफ द चेंज। आप जो हैं वो चेंज के मीडियम बनिए और चेंज आपके अंदर से होना चाहिए। आपको भी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करने की जरूरत है। आज के जमाने में जब कोरोना काल में हमने अपने जीने की जिजीविषा में, जीने की शैली में कितने परिवर्तन किए हैं। हमने अपने पढ़ाई के तरीकों में लगातार परिवर्तन किए हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हमारे लिए ऑन द लाइन एजुकेशन बन जाएगी, लेकिन बन गया। हमने अपने आप को चेंज किया। जिस मोबाइल को हम मात्र 10 to 20% यूज करते थे, आज उसका हम 50 से 60% यूज करते हैं, क्योंकि हमने चेंज को अडॉप्ट किया है। सो वी मस्ट अडॉप्ट द चेंज। कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो अपने होंठ के अंत में एक मुस्कुराहट हमेशा रखिए। द एबिलिटी टू स्माइल, क्योंकि इफ यू स्माइल देन यू कैन वॉक अ माइल। यदि आप मुस्कुराते हैं तो 1 मील चल सकते हैं। यदि आप मुस्कुराएंगे नहीं, तनाव में रहेंगे, तो 1 कदम भी आप आगे नहीं बढ़ा सकते। सो द एबिलिटी टू स्माइल has to be developed in every individual, and this becomes the third trait of our personality. Then comes the power of 3E. एक पर्सनालिटी में क्या होनी चाहिए? 3E क्या है? एक एनर्जी है, एक एम्पैथी है, परानुभूति है, और तीसरा E क्या है? तीसरा है एंथुजियाज्म, उत्साह। बगैर उत्साह के दुनिया में कोई भी काम नहीं होता है। तो उत्साह आपके अंदर आना चाहिए। उस उत्साह का ओज, तेज, आभा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। You must feel all the 3 inside you. When you feel all the 3 inside you, then you feel as if your personality starts blooming like a flower. जैसे एक फूल खिलता है, वैसे आपकी पर्सनालिटी भी खिलने लगती है। This is what the 4th trait is. And the 5th trait is thinking and feeling good and self-esteem. अपना स्वाभिमान हमेशा बनाए रखिए। कभी कोई ऐसा मत काम करिए जिसमें आपको अपने स्वाभिमान को गिरवी रखना पड़े, और हमेशा अच्छी सोच रखिए अपने दुश्मन के प्रति, उन लोगों के प्रति जो आपसे घृणा करते हैं। Those who hate you, even for them keep good thoughts. All is well, all is well, all is good. If you keep on saying so, all is good, all is well, तो आप देखिएगा कि आपके चश्मे से, आपकी आंखों से जो चीजें दिख रही हैं वो सब अच्छी अच्छी दिखाई देंगी। जब आपके अंदर में नकारात्मक सोच होगी तो आप सकारात्मक चश्मा भी पहनिएगा तो भी आपको सकारात्मक चीजें दिखाई नहीं देंगी। इसलिए अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, अपने अंदर सकारात्मक सोच लाइए। जब आप सकारात्मक सोच को लाते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके लिए साकार करती है। इसीलिए किसी फिल्म का एक डायलॉग है कि तुम किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी तुम्हें उससे मिलाने की पुरजोर कोशिश करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पर्सनालिटी बढ़े और आप उसके लिए बिल्कुल शिद्दत से काम कर रहे हैं, तो आपके आसपास का माहौल भी अपने आप आपके साथ में आ जाता है, क्योंकि आपने जैसा सोचा आपके चारों ओर का वातावरण भी वैसा ही बनने लग जाता है। So thinking and feeling is the most important thing of our personality. Gratitude. ये जो gratitude है, this gratitude must become the attitude of our life. हर व्यक्ति के प्रति अपने मन में सम्मान और एक gratitude रखना चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना छोटा से छोटा क्यों ना हो, कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। यदि मैं अपना
हैंडसेट यूज कर रहा हूं, मोबाइल यूज कर रहा हूं, उसके प्रति भी मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। हर उस बच्चे के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसने मेरी मदद की है। हर एक शख्स के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसने मुझे आज इस अवसर तक, इस मुकाम तक आने में मेरी सहायता की है। हर व्यक्ति के प्रति एक ग्रैटिट्यूड की भावना हमें रखनी चाहिए। दैट मेक्स योर सिक्स्थ ingredient of 24 karat personality. Then a positive attitude. Always success and failure, they are two sides of a single coin. यदि आप फेल हुए हैं तो वो फेल नहीं हुए हैं, उसने आपको एक नई सबक दी है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कभी भी आई कैनॉट डू मत कहिए, आप कहिए आई कैन डू, I'll try. So try again, try again until you succeed, try again. तब तक आप लगातार ट्राई करते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। 8th है लर्निंग फ्रॉम फेल्योर। इस अमिताभ बच्चन नामक शख्स से बेहतर इस दुनिया में कौन सीखा है, जो अवसाद के क्षण में आकर अवसाद को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और न जाने आज कहां कहां छाए हुए हैं। हर एक जगह हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, कौन बनेगा करोड़पति में, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। ये आवाज जो है ये लोगों तक कितनी ऊर्जा देती है, लोगों के अंदर कितनी चमक पैदा करती है। और यदि फेल्योर से हम सीख नहीं पा रहे हैं तो लर्निंग हमें हमेशा फेल्योर से सीखनी चाहिए। और लर्निंग कितना अच्छा शब्द है, देखिए लर्निंग में से एल हटा दीजिए, अर्निंग है। यदि आप लर्न नहीं करते हैं तो आप अर्न भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आपको लर्न करना है, तब जाके आप अर्न कर पाएंगे। एंड दिस कम्स ओवरकमिंग गिल्ट एंड वरी। आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर वरी है, तो उससे उभरिए। देयर इज नथिंग वर्स्ट इन द वर्ल्ड एज द एंड ऑफ होप। आशा को कभी निराशा में मत बदलिए। दुनिया में आशा यदि खत्म हो गई तो पूरी दुनिया आपके लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए उस गिल्ट और उस वरी से ऊपर उठना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सेटिंग क्लियर गोल्स ऑल द टाइम, यू मस्ट ऑलवेज टारगेट ऑन योर गोल कि आपका गोल क्या है, उस गोल तक आपको जाना है। आपके दिमाग में आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और क्लियर में से सीएल हटाइए, ईयर बचता है। उस ईयर में आपका गोल हमेशा गूंजते रहना चाहिए। जितनी कानों में आपकी गोल गूंजती रहेगी उतना ही क्लियर विजन से आप अपने गोल को देख पाएंगे। जब आप अपने गोल को क्लियर विजन से देख पाएंगे और आपके कानों में सुमधुर झंकार उस गोल की सुनाई देगी, आई एम श्योर you are going to reach your goal. And that's what we call setting clear goals. The tragedy of life doesn't lie in not reaching the goal, but having no goals to reach for. Tragedy of life ये नहीं है कि हम अपने गोल तक नहीं पहुंचे, बल्कि tragedy of life ये है कि हमने तो कोई गोल ही अपने जीवन में सेट नहीं किया था। मेरा अनुरोध है, अपने जीवन का एक गोल सेट करिए। और उस गोल तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप पहुंचेंगे एक दिन। प्रयास जारी रखिए, लोगों को लगाने दीजिए कयास, आप करते रहिए अपना प्रयास। That's what number 10 is. Then we come to number 1, be true to your values. आपकी जो वैल्यूज हैं, आपका जो ट्रुथ है, आपका जो कंडक्ट है, आपके अंदर जो शांति है, पीस है, प्यार है, नॉन वायलेंस है, इसके प्रति कटिबद्ध रहिए। अपने वैल्यूज से कभी समझौता मत करिए। समझौता गमों से जरूर कर लीजिए, लेकिन वैल्यूज से कभी समझौता मत करिए। अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि क्या मैं ये कर रहा हूं ये सही है। हृदय कहता है सही है, बिल्कुल कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पेक्ट, आपको लोगों के प्रति सम्मान रखिए ताकि आपको भी सम्मान मिले। आप न केवल अपने आप का सम्मान करें, दूसरों का भी करें, लेकिन अपने पास की जो प्रॉपर्टी है उसका भी सम्मान करें। अपने इंस्ट्रूमेंट का, अपने पेन का, अपनी नोटबुक का, अपने लैपटॉप का, अपने घर के फर्नीचर का, अपने बर्तनों का, जो आपको स्पेस मिला है बैठने का, उसका भी सम्मान करिए। हर एक चीज का इस दुनिया में सम्मान होना चाहिए। एंड इफ यू गिव रेस्पेक्ट, यू विल टेक रेस्पेक्ट, एंड रेस्पेक्ट बिकम्स द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। और यदि आप लोगों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो वही आपके लाइफ का एस्पेक्ट भी बन जाता है। क्लैरिटी एंड कन्विक्शन इन कम्युनिकेशन, मैंने 2 व्यक्तियों को लिया है। अभी अभी आपने विवेकानंद का नाम हमारे आईजी साहब से सुना, और मैंने एडोल्फ हिटलर को लिया है। एडोल्फ हिटलर के बारे में कहा जाता है कि जब हिटलर बोलता था और बोलते हुए वो दाएं से बाएं जाता था तो उसको सुनने वाले सारे श्रोता दाएं से बाएं देखते थे। और यदि हिटलर बोलते बोलते बाएं से दाएं जाता था
तो सारी की सारी जनता बाएं से दाएं देखती थी और हिटलर के एक कॉल में सारी जनता चली आती थी जर्मनी की। क्यों? क्योंकि उसके बोलने में क्लैरिटी थी, उसके बोलने में कन्विक्शन था। मैं अलग है कि हिटलर एक नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर चला, विवेकानंद पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर चले, लेकिन मैं केवल यह कह रहा हूं कि जो नायक है और जो खलनायक है, ये खलनायक और नायक यदि बन पाते हैं तो ये केवल इसलिए बन पाते हैं क्योंकि इनमें जो क्लैरिटी, इनमें जो कन्विक्शन होता है कम्युनिकेशन का, वो बड़ा गजब का होता है। आप देखिएगा हारती हुई सेना को भी ये जो हमारे खलनायक होते हैं वो उसमें इतना जोश भर देते हैं कि वो हारती हुई सेना जो लौटने को तैयार होती है वो उसके भाषण को सुनकर फिर एक बार लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो उतना मांदा उस खलनायक में भी होता है अपनी सेना को लीड करने का, और इसलिए हम उसको लीडरशिप कहते हैं। जो हमारा पूरा लाइफ है वो शिप है, और उस शिप का लीडर कौन है? हम खुद हैं। तो हमें लीड करना है, and that's what is related with Vivekananda also. Vivekananda said everything is within you and there is no need to search outside. आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, बाहर में उसको खोजने की जरूरत नहीं है, केवल अपना आत्मावलोकन करिए। You need to do the introspection. If you do the introspection, then you will inspect yourself and all the good qualities of yours will come out. So you should have clarity, conviction in communication. And when we talk of communication, communication में हमें लगता है कि हमारे पास vocabulary नहीं है। आप देख के हैरान होंगे कि आपकी जो vocabulary है वो मात्र 7% काम करती है। 38% तो आपकी टोनैलिटी है, आप कैसे बोलते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, किसी को कैसे बुलाते हैं, आपके बात करने का तरीका कैसा है, और उससे भी ज्यादा 55% फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। आप चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, मुस्कुराते कैसे हैं, लोगों को देखते कैसे हैं, ये सारी चीजें जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, दैट comprises of 55%. 38% is the voice modulation, the way you speak, and just 7% are the words. इसलिए यदि कोई कहता है कि बहुत अच्छा बोलने वाला ही बहुत अच्छी पर्सनालिटी का धनी है, मेरा मानना है व्यक्ति को बोलना तो आता है, लेकिन कैसे बोला जाए, कब बोला जाए, कहां बोला जाए, क्यों बोला जाए, इन पर यदि हम विचार कर लें तो मुझे लगता है 38% के आप किंग बन सकते हैं। और वो जब 38% आपकी पर्सनालिटी के अंदर चला जाता है तो 55% प्लस 38% आपके साथ मिलकर एक 100% पर्सनालिटी आपके सामने खड़ी हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट द एसेंस ऑफ लाइफ इज। ऑल द टाइम व्हेनेवर वी एक्वायर सम क्वालिटी, जब हमें कोई क्वालिटी आ जाती है तो हमें एक ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है, और हम कहते हैं हमसे बड़ा तो कोई नहीं है। एनवी एंड ईगो, लेट इट गो। इस ईगो को में से ई को हटा दीजिए, बाकी बचता है गो। जिस दिन हमारे ईगो में से ई हट जाएगा और हम गो की ओर चलने लगेंगे तो आप देखिएगा कि आपका पर्सनालिटी अपने आप बदल जाएगा। दूसरे फोटो में देखिएगा, एक बड़ा शरीर मिलता बहुत छोटा चीज है खाने को, और एक छोटा शरीर मिल रहा है बहुत बड़ी चीज खाने को। जहां जहां हमने अपनी ईगो पाल रखी है वहां वहां हम हमेशा नाकामयाब होते गए हैं। इसलिए ईगो को ई गो कहिए और आगे बढ़िए। स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। मदर टेरेसा के जैसा जहां जाएं करुणा, प्यार, जितना आप बांट सकते हैं लोगों को बांट के, जितना आप प्यार बांटेंगे उतना प्यार आपके पास ही लौट कर आएगा। स्प्रेड को, हमें लव को और हैप्पीनेस को स्प्रेड करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जितना आप लोगों को प्यार देंगे वो दुगनी मात्रा में हमारे तक जरूर वापस आएगा। हमारी पर्सनालिटी का ये 15वां ट्रेट है। 16वां ट्रेट है स्टॉप कंप्लेनिंग। हर हमेशा हम दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेन करते हैं। कभी भी लोगों को क्रिटिसाइज मत करिए, कंप्लेन मत करिए। स्टॉप कंप्लेनिंग, और उस स्टॉप में से आप एस हटा दीजिए, बचता क्या है? टॉप। जिस दिन आप कंप्लेन करना और क्रिटिसाइज करना स्टॉप कर देंगे उस दिन आप कहां पर होंगे? टॉप पर होंगे। दैट्स व्हाट इज द पर्सनालिटी। नेवर एवर कंप्लेन, नेवर एवर क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज को भी आप दूसरे तरीके से कहिए, आप आलोचना मत करिए, समालोचना करिए। सो दैट्स द एसेंस एंड द ब्यूटी ऑफ योर पर्सनालिटी।
Then the 17th is acknowledge people. जितने लोगों ने आपकी मदद की है उन सभी को एक्नॉलेज करिए। क्रिकेट में देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सेंचुरी बनाकर लौटता है या अच्छे से विकेट ले लेता है तो सारे लोग, विदेशी खिलाड़ी या स्वदेशी खिलाड़ी या दूसरे दल के खिलाड़ी भी, all of them, they respect him, they acknowledge. So that acknowledgement has to be there. And if you start acknowledging people, then you gain the knowledge of your personality. So acknowledge में ही knowledge भी छुपा हुआ है. This is 17. 18 is challenge your fears. आपको यदि भय लगता है तो उस भय को चैलेंज करिए, उस भय को अपने अंदर मत रखिए, उस भय को चुनौती दीजिए. माउंटेन ड्यू भी कहता है डर के आगे जीत है. तो इसीलिए डरिए मत, बल्कि डर को चुनौती देके आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे तो डर के तुरंत बाद जो होगा वो सफलता का मुकाम होगा. That's what is success. So just challenge your fears and go. Then you will find your destination is just after the fear. जैसे आप fear को क्रॉस करते हैं, आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन आपके इंतजार में खड़े होकर ताली बजाता हुआ होता है. होता क्या है कि हम डर कर वहीं से वापस आ जाते हैं. हम चढ़ जाते हैं करीब 500 सीढ़ी, 100 सीढ़ी बची होती है तो हम कहते हैं कि अब नहीं हो सकता, अब मुझसे नहीं हो सकता. Then what you do? You always look back. पीछे मुड़ के देखिए, उतरना कितनी सीढ़ी है? 500. चढ़ना कितनी है? Just 100. So gear your spirit, अपने स्पिरिट को गियर अप करिए and challenge your fears and just go. You will reach the destination. Beautiful photograph is there. What is this? Shifting focus. ये बच्चा देखिए, उसको मालूम है सूमो पहलवान से वो जीत नहीं सकता. He cannot defeat the sumo champion. But what he is doing, he's shifting the focus. And the moment you shift the focus, you are going to win the battle. The battle are not fought with the help of your heavy body or the structure of yours. The battle is won by shifting the focus. This is a mental game which you need to understand. So always when you are worried, just shift your focus. And the moment you shift your focus, the attention will be diverted. Then you will increase your own internal ability, and then once again you focus. I'm sure you are going to reach the destination of your personality. Stop procrastination. हम स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे सो तुरंत. हम ये नहीं करते. हम क्या करते हैं? तुरंत करे सो अब कर, अब करे सो कल, कल करे सो परसों, और परसों करे न करे बीत जाए बरसों. इतना सारा हमारे पास काम आ जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन करते हुए. कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिए. जस्ट डू द वर्क व्हिच इज बीइंग अलॉटेड टू यू. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, इट विल बिकम वेरी इजी. मेकिंग डिसीजंस ऑन टाइम. ऑलवेज, कभी भी जीवन में समय के अनुकूल निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर हमें विकसित करने की जरूरत है. दिस इज द 21st कैरेट पर्सनालिटी. देन 22nd, नेवर गिव अप, जस्ट गेट अप. सचिन तेंदुलकर को लोगों ने खूब बुरा भला कहा, खूब कहा आप सचिन रन नहीं बना रहा है, टेनिस एल्बो हो गया था. सचिन ने कुछ भी नहीं कहा. जब वापस सचिन लौट कर आते हैं तो दनादन सेंचुरी बनाते हैं. दैट्स व्हाट इज नेवर गिव अप, जस्ट गेट अप. You see another photograph. Both of them are not giving up, but get up. The moment you get up, there is a hope. The moment you give up, there is no hope. जिस दिन आप गिव अप कर देंगे उस दिन होप समाप्त हो जाता है, और जिस दिन आप गेट अप करते हैं अपने आप होप रहता है. इसलिए हिंदी में एक कहावत है, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल पर चले. तो इसीलिए आप चलिए. यदि बच्चे होकर हम यदि गिरने को सोचते तो आज हम चल नहीं पाते, आज हम दौड़ नहीं पाते. हमारी मां हमें यदि उठा ली होती तो वी वर अनेबल टू वॉक, वी वर अनेबल टू रन ऑल्सो. सो दैट्स व्हाई इन लाइफ never give up, just get up. Improve constantly. Improvement is a continuous process. All the time you have to think constantly, improve constantly. देखिए कि कहां चूक हो गई है, उस चूक पे काम करिए, and then you will find you are going to prove yourself. Improve कहता है I am prove, means I am there to prove myself. That's what the definition of improve is. और अंतिम जो है 24 कैरेट का, टेक एक्शन नाउ. स्टैंड अप एंड टेक एक्शन. कब करूं? अरे नहीं कल करूंगा. नो, जस्ट नाउ टेक द एक्शन. हमें एक्शन कब लेना है? हमें एक्शन अभी
और तुरंत लेना है। और ये जो हम 24 कैरेट पर्सनालिटी कहते हैं, तो समरी क्या है? समरी ये है, इफ यू वांट टू हैव समथिंग यू नेवर हैड, यदि आप ऐसा कोई चीज चाहते हैं जो आप कभी पा ही नहीं पाए अपने जीवन में, डू समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर, तो ऐसा कोई काम करिए जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया है, और देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचरण होगा, और you will find as if your personality is blooming like anything. So the 24 carat personality development is, just summary is, be yourself, adopt to the change, ability to smile, the power of 3E, self-esteem, attitude of gratitude, a positive attitude, learning from failure, overcoming guilt and worry, setting clear goals, being true to your values, respect people and yourself, clarity and conviction in communication, which is very important. Nowadays, communication is the most important thing. In that, I told you 7% is only verbal, 55% is your personality. So try to work on your body language. And then envy and ego, let it go. Spread love and happiness. 16th is don't complain or criticize. Acknowledge people. 18th is challenge your fear. डर के आगे जीत है. 19 shifting the focus. 20 stop procrastination. कल करने के काम को आज, आज करने वाले काम को अभी करना है. 21 making decisions on time. Never give up, just get up. Improve constantly and take action now. हमें एक्शन तत्काल लेना है, और तब हमारा यह चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, the most smiling face will come into existence. Keep calm and put on a happy face. हमेशा कूल बने रहिए, कैप्टन कूल बने रहिए, because be yourself. You are born an original and don't die a copy. आप पैदा ओरिजिनल में हुए हैं, आप कॉपी बन के इस दुनिया से मत जाइए. If you want to depart from this world, everyone has to depart from this world. The way we have taken birth in the way original, let us go in the same way original. इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, what we are is a gift of God, what we become is a gift to God. हम जो हैं वो भगवान की देन है, और हम जो बनेंगे वो भगवान को हमारी ओर से देन होगी. तो भगवान ने हमें ओरिजिनल बनाया है, तो हम भगवान को भी एक ओरिजिनल देन ही दे, हम किसी की कॉपी न बने. So that's the beauty and essence of all the 24 carat personality. You have given me a good amount of time to talk to you on personality development. You have given me wonderful occasion to talk to so many people on the personality which doesn't have any duality. I thank Nisha Joshi Foundation for providing me this wonderful opportunity. Thank you very much. May God bless all of you with excellent, exuberant personality. Thank you very much. जी सर. Thank you so much, sir, for this wonderful session you have given us. You have talked about a lot on personality development, especially the new thing which we have learned, like 24 carats in personality. So even I'm sure the youth right now is really moved and motivated by this. There are some points you have said, like Vyaktitva hi astitva hai. So I'm sure everyone is like really moved and motivated by this. There are some points like we are what we think we are, but we become what we think we become. So thank you so much for this session, sir. There are other points also. There's one question we got from France, actually. The question is, there are kids right now who are practicing so much during this COVID-19 time, sir. And even after practicing so much and not giving up, they're not getting the success which they want. So, and because of that, they're getting depressed. So do you have any suggestion, any advice to those kids right now? Yeah, practice may not yield the result at the very moment. We must keep on practicing and practicing, and you never know how the success is coming to you. Success will not come in can'ts, but success will come in cans. So they are getting success, but the success which they want in a short span of time, they may not be having it. But I cannot say they are not getting success. Every day they are getting success, and that has to be accumulated. It takes its own time to get a particular form of it. So to create a form, even for a child,
when it becomes a zygote, and when it turns into a child, it takes 9 months, right? So even to become a child, it takes 9 months. So everything takes its own time. In a very short span of time, if you say the farm has not come, even the seed takes time to get developed into a plant, and plant takes time to develop into a tree. So everything takes a time. If it is going to come, it is bound to come. You must believe in yourself, and always there is a progress, always there is a success. But only one thing is, you need to see the shape of the success, which you can see only when the time comes. So that's why never ever get depressed. When you get depressed, do one thing: just turn yourself to yourself. Just love the you in you. Don't love some other person, but try to love yourself. When you look into yourself, you will feel there is nothing much wonderful than you in the world. That's the self beauty which we need to practice. Not to get depressed by looking into others, but to get impressed by looking into ourselves. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We totally get it. I totally get it. I'm sure the question is really answered properly because it's G. Ghanshyam, sir. Of course, it will be answered properly. So thank you so much, sir. As we would request you to take this as a token of appreciation from our academy, a small certificate for you. So thank you so much, sir, for this really wonderful session you have given Thank you very us. much. Thanks a And lot. I'm sure everyone is moved. एंड ऐसे ही आपके साथ ऐसे ही बना रहे, हमारे ऐसे ही होप्स है, ऐसे ही आशा है. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. जी सर. So moving on from here, I would like to tell you about the tomorrow's session we have.